Chemistry Chapter 2, Chemical Bonding. Very nice words with this beginning of this chapter. Everything in this world wants stability, and so is the case with atoms. For atoms, stability means having the electron arrangement of an inert gas, that is octet, in its outermost shell. Helium, for that matter, has 2 electrons, duplet, while all other inert gases, neon, argon, krypton, xenon, radon, they have 8 electrons or octet in their outermost shell, as given in the table below. So as you can see in this table, these are inert gases: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. What are their atomic numbers? 2, 10, 18, 36, 54, 86. Any need to remember? Only up to argon or maximum krypton, not beyond that. But the important thing here to understand is their electronic configuration. Helium has one shell, and in that one shell it has 2 electrons. So it has its outermost shell completely filled. It has a duplet. Neon, on the other hand, has 2 shells, and in the outermost shell of neon there are 8 electrons. That means an octet. Argon, the electronic configuration is 288. Krypton, 28818. Xenon, 2881818. Radon, 288183218. All the inert gases except helium has 8 electrons in their outermost shell. Helium has 2 electrons, but nonetheless all the inert gases has completely filled outermost shell. Now what does this mean for an atom? This atom has completely filled outermost shell. That means it will be inert. Inert means it will be non-reactive. That means it will neither want to donate electron nor it will want to accept electron. We have studied chemical combination or chemical bonding in class 9th, and this is the same chapter of chemical bonding, but in little bit more detail. But the core of the chapter begins from the topic that why any atom in the world would want to bond in order to achieve stable electronic configuration. Any element would want to achieve stability. Stability means stable electronic configuration. Stable electronic configuration means outermost shell completely filled, either a duplet or an octet, right? Whenever the outermost shell is completely filled, like helium or like neon, argon, krypton, xenon, radon, the element becomes stable, chemically stable, and does not want to react with any other element or atom of any other element or with any other compound, right? So the only criteria for all the atoms in the whole universe is to achieve stability, right? And stability, with stability we mean stable electronic configuration. So to achieve this stability, chemical bonding takes place. So cause of chemical combination is the tendency of elements to acquire the nearest noble gas configuration in their outermost orbit and become stable. So how do they become stable? They acquire the electronic configuration of their nearest noble gas. They acquire the electronic configuration of their nearest noble gas in their outermost orbit and become stable. तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. इस एग्जांपल के लिए हमें पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे लाना पड़ेगा. ठीक है, 1 मिनट में लेके आता हूँ. सो हियर इज योर पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिक टेबल में अगर तुम देखोगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इनको ज़रा हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं.
ये कहाँ पे पाए जाते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स? दे आर ऑल, दे एग्जिस्ट ओवर हियर, यू सी देम इन ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, दे वांट टू बिकम लाइक देम। ये जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस, ये उनके लिए आइडियल है। आइडियल, आइडियल पता है ना क्या होता है? आइडियल, जब तुम बोलते हो कि मेरा आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श बालक। बहुत लोग ये कॉन्सेप्ट जानते नहीं आदर्श बालक का, लेकिन आदर्श बालक, सारे मम्मी डैडी चाहते हैं कि हमारा बच्चा आदर्श बालक बने। वैसे ही सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम आइडियल, आदर्श एटम बने, आदर्श इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबिलिटी अचीव करें हम लाइफ में। तो ये बेचारे एटम्स इसके पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। बट ये इनका आइडियल कौन है? जैसे कि कोई भी उठ के नहीं बोल सकता कि मेरा आइडियल आज से नियॉन है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सुबह उठा बोला मैं तो आज नियॉन जैसा बनना चाहूंगा। अबे तू कैसे बनेगा नियॉन जैसा? तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। नियॉन के पास देख जाके कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कहां से लाएगा 8 इलेक्ट्रॉन? तेरे पास तो शेल भी एक है, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रह नहीं सकते। तो हर एक एलिमेंट आइडियल एलिमेंट अपना अपना चूज कर लेता है। कैसे? every element in the periodic table tries to become like tries to achieve an electronic configuration like their nearest noble gas। वो अपने नियरेस्ट, सबसे नजदीक वाले नोबल गैस जैसा बनना चाहे। तो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था, तो हाइड्रोजन का आइडियल नोबल गैस नियॉन नहीं हो सकता, आर्गॉन नहीं हो सकता, क्रिप्टॉन नहीं हो सकता, वो सारे बहुत दूर है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उससे सबसे नियरेस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? हीलियम का। तो हाइड्रोजन का आइडियल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होना चाहिए? किसका होना चाहिए? किसके जैसा होना चाहिए? हीलियम जैसा होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मोर। तो अपना हाइड्रोजन है, राइट? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसके पास प्रोटॉन्स कितने? 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। न्यूट्रॉन्स कितने? 0। ठीक है। हाइड्रोजन का एटम दिखता कैसा है? तो ये उसकी न्यूक्लियस है, और ये एक शेल है उसके पास, और एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब दिखता ऐसा है, वो एक ही शेल है उसके पास, तो वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, और 1 कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो वो बनना चाहेगा किसके जैसा? हीलियम जैसा। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2, और 2 का मतलब होता है ड्यूप्लेट। क्या मतलब होता है? ड्यूप्लेट। तो हाइड्रोजन हीलियम जैसे बनने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? इजी है ना हाइड्रोजन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हाइड्रोजन को मिल जाए, कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे, डोनेट कर दे, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल फिल्ड हो जाएगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा हो जाएगा, और यही तो वो चाहता है। इसलिए हाइड्रोजन का आइडियल, जो क्या बोलते हैं कि तुम जब कोई भी गोल सेट करते हो ना, कि मुझे लाइफ में ये मेरा गोल है, तो वो गोल क्या होना चाहिए पता है? रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है। सपोज कोई बच्चा है तुम्हारे क्लासरूम में, उसको 60% आता है, तो उसका गोल सेटिंग होना चाहिए कि चलो मुझे नेक्स्ट एग्जाम में 70% लाना है, 65 लाना है, 70 लाना है, 75 ज्यादा से ज्यादा। वो ये नहीं बोल सकता कि अब मैं नेक्स्ट एग्जाम में, आज मेरे 60% आए, अब मैं बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम उसमें मैं 98% लाऊंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ये आइडियल गोल सेटिंग नहीं है। ठीक है। जब तुम्हें आइडियल या प्रॉपर गोल सेटिंग करनी है, तो तुम बहुत ही छोटा, नियर बाय अचीवेबल टारगेट चूज करोगे। तो वैसे ही हाइड्रोजन के लिए जो अचीवेबल टारगेट है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। तो वो हीलियम जैसे बनने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू अचीव एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, दैट इज अ ड्यूप्लेट, राइट? अच्छा, मैं तुम्हें पूछता हूं अब, टेबल देख के बताओ, लिथियम किसके जैसे बनने की कोशिश करेगा? मेरा
जो एलिमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं दैट इज लिथियम ओवर हियर। ठीक है, लिथियम किसके जैसी बनने की कोशिश करेगा? अच्छा, तुम्हारे आइडियल है यहाँ पे ये लास्ट ग्रुप 18 में, और लिथियम है बेचारा यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हारे पास मैं ऑप्शन दे रहा हूं दो। ठीक है, एक पहला ऑप्शन है लिथियम बनने की कोशिश करेगा हीलियम जैसा, या फिर वो बनने की कोशिश करेगा नियॉन जैसा। चलो तीसरा ऑप्शन भी दे देता हूं, आर्गन जैसा। अच्छा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2। नियॉन का क्या है? 2,8। आर्गन का क्या है? 2,8,8। और लिथियम का क्या है? 2,1। ठीक है, अब देखो अचीवेबल आइडियल टारगेट उसके लिए, मतलब जो आदर्श एटम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस, वो कौन है उसके लिए? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है? देखो देखते हैं। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर ये लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जो ग्रुप 1 का एलिमेंट होते हुए वो इजिली कर सकता है, तो वो हीलियम जैसा बन जाएगा। नियॉन जैसा बनने के लिए उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मतलब वो 7 इलेक्ट्रॉन उसको कोई डोनेट करना चाहिए, तब जाके वो बनेगा लिथियम जैसा, सॉरी नियॉन जैसा। और लिथियम को अगर आर्गन बनना है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन और एक शेल भी बनाना पड़ेगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल दिखता है। मतलब आर्गन तो है ही नहीं आइडियल इसके लिए। अब बचे दो कंटेंडर। देखो, नियॉन है, नियॉन में क्या हो जाएगा कि उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या लिथियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा अपने? बिल्कुल नहीं दे सकता। 7 इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कभी भी देखो इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट होते हैं 1 2 या 3 से ज्यादा डोनेट नहीं हो सकते। एक्सेप्ट होते हैं तो 1 2 3 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हो सकते। शेयर होते हैं तो 1 2 3 से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते। 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या किसी के लिए डोनेट करना क्या कोई खाने की बात है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नियॉन इज नॉट, एब्सोल्युटली नॉट आइडियल और अचीवेबल टारगेट। सो भाई लिथियम के लिए आइडियल कौन है? हीलियम। लिथियम किसकी तरह बनना चाहेगा? हीलियम। लिथियम के लिए किसका इलेक्ट्रॉनिक अचीव करना आसान है? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना आसान है। तो लिथियम ये कैसे, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। मैं यहाँ पे और एक चीज हमने पढ़ी थी कि एलिमेंट्स ट्राई टू अक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड बिकम स्टेबल। अब ये भी इजी है इसको पता लगाना कि लिथियम से नियर बाय कौन है, नियरेस्ट कौन है। देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। हीलियम का क्या है? 2। नियॉन का क्या है? 10। आर्गन का क्या है? 18। 3 2 से ज्यादा करीब है, या 3 10 से ज्यादा करीब है, या 3 18 से ज्यादा करीब है? ऑफ कोर्स 2 से। सो लिथियम हीलियम की तरह बनने की कोशिश करेगा तो सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि दैट इज द नियरेस्ट नोबल गैस टू लिथियम, राइट? तो तुम्हें ये देखना है कि नियरेस्ट नोबल गैस, भले लिथियम लेफ्ट साइड पे रहे पीरियोडिक टेबल के, नियर मतलब ऐसा बाजू बाजू में होना जरूरी नहीं है, लेकिन हीलियम लिथियम के बिल्कुल पहले वाला एलिमेंट है और बिल्कुल नियरेस्ट नोबल गैस है लिथियम से। इसलिए लिथियम हीलियम जैसा बनने का कोशिश करेगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा, बिकॉज दैट इज एन अचीवेबल आइडियल टारगेट फॉर लिथियम। अभी समझ में आया? तो मुझे बताओ कि अब इतना डिस्कशन किया हमने, तो बताओ सोडियम के लिए अचीवेबल टारगेट क्या होना चाहिए? मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूं। सोडियम के लिए अचीवेबल टारगेट क्या होना चाहिए? सोडियम नियॉन की तरह भी बनने की कोशिश करेगा, या आर्गन की तरह बनने की कोशिश करेगा, या क्रिप्टॉन की तरह बनने की कोशिश करेगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। नियॉन का क्या है? 10। आर्गन का 18। क्रिप्टॉन का 36। क्रिप्टॉन तो बहुत दूर है, आर्गन भी बहुत दूर है, नियॉन उससे बिल्कुल कम नजदीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियॉन जैसा बनने की कोशिश करेगा इजीली, और बन भी जाएगा। तो हमेशा कोई भी एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का कोशिश करता है। मैं और एक नॉन मेटल का एग्जांपल लेके यहाँ पे इसको कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ अभी। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं लेने वाला हूँ वो है क्लोरीन का। क्लोरीन
का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,7 बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन से सबसे नजदीक वाला जो नोबल गैस है वो कौन सा है? नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है? ऑफ कोर्स आर्गन है, क्योंकि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,8। तो क्लोरीन आर्गन जैसा बनने की कोशिश करेगा और सक्सेसफुल भी होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इट इज वेरी इजी for chlorine to accept one electron from any other atom of an element and achieve stable electronic configuration which is just like argon. So chlorine will try to become like argon and achieve stability. So hence it is proved that elements in the periodic table, elements, whichever elements are there here in the periodic table, they will try to achieve the electronic configuration of their nearest noble gas and achieve stability, because all the elements in the world, entire universe, they are looking for stability, and that is the core reason for chemical bonding. अब ये stability achieve कैसे करना है, इसके ऊपर पूरा chapter है. The whole chapter is based on the topic that how elements achieve the stable electronic configuration, and the method is known as chemical bonding. So chemical bond में होता क्या है? During redistribution of electrons, a bond or a force of attraction develops between the atoms, which binds them together to form molecule. केमिकल बॉन्ड का आउटकम क्या है? कि मॉलिक्यूल बन जाते हैं। दो एलिमेंट के बीच में जब केमिकल बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो दोनों एलिमेंट को एक साथ रखता है, राइट? और उसको उससे क्या बना देता है? केमिकल बॉन्ड. अ केमिकल बॉन्ड मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two atoms in a molecule to maintain stability. केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स. प्लीज नोट कर लेना डेफिनेशन को. डेफिनेशन सारी मेमोराइज करनी है, और टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में ये जो की वर्ड्स बता रहा हूं मैं, वो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में तुम्हें रिमेंबर करनी है डेफिनेशन. तुम अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख के आ जाओगे एग्जाम में, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे. ना बोर्ड्स देगा, ना मैं दूंगा मार्क्स, ना स्कूल देगी मार्क्स. इसलिए टेक्निकल वर्ड्स बहुत जरूरी है. केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी. तो होता कैसे है, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे? तीन मेथड है हमारे पास, हमें तीनों मेथड पढ़नी है. थ्री मेथड्स in which atoms can achieve stable electronic configuration. Number one is transfer of one or more electrons from one atom to another to form an electrovalent or an ionic bond. ठीक है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, और उससे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से बॉन्ड बनता है, ये पहले टाइप का बॉन्ड है. सेकेंड टाइप का बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. दो एटम्स के बीच में 1, 2 या 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो कोवेलेंट या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है. तो पहला कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. कैसे बनता है? बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. एंड सेकेंड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड. कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? बाय शेयरिंग 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स. ठीक है? तो ये दो टाइप के. और तीसरा टाइप का जो हमें पढ़ना है, जो नया है, नई चीज है तुम्हारे लिए, एक्चुअली तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9th में, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड. बट जो न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड है जो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले इस चैप्टर में, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. कैसे बनता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड? व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are contributed by only one of the combining atoms, the bond formed is known as coordinate or dative bond. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे at the end of the chapter after studying ionic and covalent bond. तो अभी मैं इतना डिटेल में कोऑर्डिनेट के बारे में तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज द रीजन इज कोई मतलब नहीं है अभी. सिर्फ इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होते हैं वो सिर्फ एक एटम शेयर करता है, जो दूसरा एटम है वो शेयर नहीं करता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको जरूरत है. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं अपने ओरिजिनल एटम के पास ही, लेकिन शेयरिंग होती है दूसरे के साथ भी. ठीक है? तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाउ आई थिंक वी शुड मूव अहेड एंड स्टडी इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड. तो देखो, एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में, एटम्स जो मेटालिक एलिमेंट्स के होते हैं, सॉरी मेटल के जो एटम्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 1
2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनका क्या कोशिश रहता है, मैंने तुम्हें अभी बताया था भाई। उनका जो कोशिश रहता है, यहाँ पे देख लो तुम्हें समझ में आ जाएगा। उनकी जो कोशिश होती है, उनका जो टेंडेंसी होता है, दैट इज टू अचीव स्टेबिलिटी एंड टू बिकम लाइक देयर नियरेस्ट नोबल गैस। बट हाउ डू दे डू दैट? ग्रुप नंबर 1 में देख लो, ग्रुप नंबर 2 में देख लो, ग्रुप नंबर 3 तो नहीं बोलूंगा लेकिन 13 बोलूंगा, उसमें कुछ एटम्स को देख लो। वो लोग क्या करते हैं पता है? दे ट्राई टू डोनेट, दे ट्राई टू लूज देयर आउटर मोस्ट, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि सोडियम, सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो मेटल है सोडियम, इसलिए वो कर रहा है ऐसा। मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। एल्यूमिनियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तो हो गई मेटल्स की बात। मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात सही है। और ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स डोनेट करने की कोशिश करते हैं, ये भी बात सही है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? तो मैं ये ब्रिज एलिमेंट्स की बात नहीं करूंगा, सीधा जाऊंगा फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा पता है? वो आर्गन जैसे बनने की कोशिश करेगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस का 285 है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है। तो जब फॉस्फोरस आर्गन जैसी बनने की कोशिश करेगा तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे। इट वुड रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा किसी से 3 इलेक्ट्रॉन, किसी एक से या 3 अलग अलग एटम से, दैट डजेंट मैटर, बट वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आर्गन जैसा बनने की कोशिश करेगा। सल्फर जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,6, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करेगा। क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल होना चाहते हैं। फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होना चाहते हैं। और इससे हमें एक पैटर्न समझ में आती है कि सारे मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे मेटल्स। और ये सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। सारे नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते, आई एम सॉरी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन एक एक्सेप्शन है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट या एक्सेप्ट बहुत रेयरली करता है, वो शेयरिंग करता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे। लेकिन जनरली नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या करते हैं? ये उनको डोनेट नहीं करते, ये उनको एज इट इज रखते हैं। ऊपर से ये 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। और इससे हमारा बॉन्ड, पहले टाइप का बॉन्ड, नंबर 1 बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में याद रखना, मेटालिक एटम क्या करता है? मेटालिक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मेटालिक एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वो क्या बन जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। मेटालिक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, कैटायन बन जाता है। नॉन मेटालिक एटम ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है और उसको एनायन बोलते हैं। तो आयन क्या है? अब तुम बोलोगे सर ये नई स्टोरी कहां से आ गई? स्टेबिलिटी तो अचीव कर ली ना, अब हमें क्या करना है? इसका आयन बने ना बने? नहीं भाई नहीं, स्टेबिलिटी अचीव कर ली, लेकिन जब तक स्टेबिलिटी कैसे अचीव की इसको समझोगे और स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद क्या हुआ उसको नहीं समझोगे तो ये स्टोरी अधूरी है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ विथ अ प्रॉपर एग्जाम्पल। A proper example which I can give you is of sodium. सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, सोडियम क्या करता है? सोडियम इनिशियली इसके पास, लेट मी ड्रॉ सम बिगर सर्कल्स। इनिशियली
सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी उसके पास 11 है। तो ये फर्स्ट शेल है सोडियम का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सेकेंड शेल है सोडियम का, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये थर्ड शेल है सोडियम का, जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281। अब क्योंकि सोडियम मेटल है, उसकी टेंडेंसी है नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना और नियॉन की तरह बन जाना। क्योंकि वो नियॉन की तरह, नियॉन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बनना चाहता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, और हमारे पास जो एटम बचेगा वो एटम नहीं होगा, वो आयन होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ वो आयन कौन सा होगा, कैसा दिखेगा, क्या करेगा। अब ये जो आयन बनेगा वो एटम ही है, वो एटम ही है, लेकिन क्या है उसमें चेंज देखो। 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स जस्ट लाइक अर्लियर। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक अर्लियर। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक अर्लियर। ठीक है, एंड थर्ड शेल गायब हो गया, थर्ड शेल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन जो था थर्ड शेल में उसको डोनेट कर दिया, और शेल कुछ नहीं होता, शेल तो इमेजिनरी पाथ होती है। इलेक्ट्रॉन चला गया, इमेजिनरी पाथ गायब हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2,8 हो गया ना। अब सोडियम दिखता है बिल्कुल नियॉन जैसा, तो सोडियम तो नियॉन बन गया। अब नहीं, सोडियम नियॉन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, प्रोटॉन्स है इसके पास 10, और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 10। सोडियम आयन, ये क्या है? सोडियम आयन या फिर कैटायन ऑफ सोडियम। ठीक है, ये जो सोडियम आयन है इसकी खासियत क्या है? इसके पास प्रोटॉन्स है 11, इलेक्ट्रॉन्स है 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। ठीक है, तो अगर तुम इसको गौर से देखोगे, न्यूट्रॉन्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने देखो भी मत अभी। अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको, तो इलेक्ट्रॉन्स एक कम है, प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो माइनस हो गया ना, चला गया, डोनेट हो गया। तो ओवरऑल ये जो सोडियम का आयन है, इसको आयन क्यों बोलते हैं इसका रीजन अब पता चलेगा तुम्हें। ओवरऑल इस सोडियम के आयन में एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एक नेगेटिव चार्ज से, इसलिए ओवरऑल ये पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज एग्जिबिट करता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज अ चार्ज्ड एटम, और चार्ज्ड एटम को ही क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। सो ये सोडियम का आयन है, करेक्ट। अच्छा, आप देखो, जरा ध्यान से सुनना इसको। ये तो हो गया सोडियम का आयन, सोडियम का कैटायन जिसके पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। हम लोगों को सोडियम का पता चला, लेकिन और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, हम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की भी बात करते हैं, तो ही हमारा ये जो स्टोरी है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का वो कंप्लीट होगा। तो नॉन मेटल में एक कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अभी क्लोरीन का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स इसके पास 17 है। न्यूट्रॉन्स इसके पास 35 भी होते हैं, सॉरी, न्यूट्रॉन्स इसके पास 18 भी होते हैं, 20 भी होते हैं। मैं अभी 18 गिनता हूँ, ठीक है। सो क्लोरीन का जो एटम है वो कैसा दिखता है? ये उसकी न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन्स 17 है, न्यूट्रॉन्स 18 है। अब कोई पूछेगा क्यों न्यूट्रॉन्स 18 होता है? भाई ये तो ऐसा ही होता है, इसका स्ट्रक्चर है वैसा। इसका आंसर नहीं है अपने पास। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 7. This is how chlorine atom looks like. This is atom of chlorine. ठीक है, अब ये एटम क्या करता है, ये बनना चाहता है आर्गन की तरह. आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288. नियरेस्ट नोबल गैस है क्लोरीन का. कैसे बनेगा आर्गन की तरह, तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है आर्गन का. तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से डोनेट कहीं से एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा. तो समझो इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, +1 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल गया. तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा क्लोरीन का आयन, जिसके प्रोटॉन्स कितने होंगे, 17, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 18. प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता यार, फर्क किधर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स में. 2 8 एंड आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली अब क्या हो चुका, फील्ड, क्योंकि फिल्ड हो गया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया. तो आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. लेकिन अब तुम बोलोगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2,8,8 हो गया, तो ये तो आर्गन बन गया. नहीं नहीं नहीं, ये आर्गन नहीं बना है. क्यों आर्गन नहीं बना है, बिकॉज आर्गन में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं. और कोई भी एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर है वो तो इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करते हैं, लेकिन उसका जो फिजिकल बिहेवियर है वो आर्गन जैसा नहीं होगा. अब वो क्लोरीन का आयन बन चुका है. ठीक है, अब देखो ये जो क्लोरीन का आयन है, एनायन इसको बोलते हैं, एनायन ऑफ क्लोरीन, Cl माइनस. माइनस क्यों होता है वो बताता हूं मैं. इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे 18. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18. प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 प्रोटॉन्स है. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, प्रोटॉन एक कम है, तो ओवरऑल इस पूरे एटम पे एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. तो यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज दिखेगा. ये नेगेटिव चार्ज की तरह ये एटम चार्ज्ड एटम की तरह बिहेव करेगा. उसी चार्ज एटम को एनायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को, राइट. तो बेसिकली हमारे पास अगर तुम इसका जूम आउट वर्जन देखोगे, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं जूम आउट करके. तो हमारे पास 2 आयन क्रिएट हुआ है. ठीक है, तुम्हारे स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे अगर तुम देखोगे तो सोडियम एटम से सोडियम का आयन बना जो पॉजिटिव है, क्लोरीन के एटम से क्लोरीन का आयन बना जो नेगेटिव है. दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसा हो गया, दोनों केमिकली स्टेबल हो गए. सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन दोनों ने केमिकल स्टेबिलिटी अचीव कर ली. लेकिन 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 ये चार्ज भी एक्वायर कर लिया. मतलब ये केमिकली स्टेबल तो हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहे जैसे पहले थे. पहले सोडियम का केस क्या था, जब वो एटम था 11 प्रोटॉन थे 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, न्यूट्रल था. अब उसके पास 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया. क्लोरीन का केस कैसा हो गया, तो क्लोरीन के पास पहले जब वो एटम था तो 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. लेकिन अब 18 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रिकली वो नेगेटिव है, राइट. अब ये रीजन है कि बॉन्डिंग होती है. चलो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, नियरेस्ट अचीविंग द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग क्यों होती है. अब देखो, अगर एक सोडियम, देखो मैं यहां पे तुम्हें इसके नीचे ही लिख के बताता हूं.
अगर एक सोडियम Na+, ठीक है, और Cl-, चलो इससे पहले वाली स्टोरी भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन की स्टोरी समझनी है ना अपने को। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? क्लोरीन को, और वो क्या बन गया? Na+। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो क्या बन गया? Cl-। अब जब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दोनों दूर दूर तो रह के नहीं कर सकते, ये पास आना पड़ेगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपने अपने सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सोडियम से, वो चार्ज अक्वायर कर लेते हैं। और वो चार्जेस क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब Na+ और Cl-, ये जो दो चार्ज्ड पार्टिकल, जो चार्ज्ड आयंस, कैटायंस और एनायंस बन गए सोडियम और क्लोरीन के रिस्पेक्टिवली, उनके बीच में एग्जिस्ट करता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब द अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल। तुम्हें पता होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तुमने 8th स्टैंडर्ड में। चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन वैसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये बना देंगे एक बॉन्ड। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये पूरी स्टोरी है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। ये मैं तुम्हें हर एक एटम के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ नहीं बताऊंगा। ये ओवरऑल स्टोरी मैंने तुम्हें ड्रॉ करके पूरी एक बार बता दी। अब सारे एलिमेंट्स के साथ यही चीज होने वाली, यही चीज होने वाली। ठीक है, तो सोडियम का जो आयन है वो क्लोरीन के आयन के साथ बॉन्ड हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी बॉन्ड को, ये जो नया कंपाउंड बना है इसी ये बॉन्ड की वजह से, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर आयोनिक बॉन्ड, या फिर आयोनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। दो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनने वाला बॉन्ड, ठीक है, उसको आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गया कैसे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? ओके, देन आई थिंक इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर व्हाट? फॉर मी टू एंड द लेक्चर और फॉर अस टू गो अहेड? लेट्स चेक। आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अच्छी नोट पे फिनिश करना चाहूँगा। ये बड़ी स्टोरी मैंने तुम्हें बताई, और आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो आज एक गुड न्यूज़ ये है कि यार लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा और होमवर्क नहीं रहेगा आज के लिए, लेकिन तुम्हें नोट्स लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक नोट्स, ठीक है, तो ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। होमवर्क मिलेगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जाने से पहले आई वुड लाइक टू क्लियर वन मोर पॉइंट। यहाँ पे कैसे लिखा है देखो, इनकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। The cation and anion being oppositely charged attract each other and form a chemical bond. Since this chemical bond formation is due to electrostatic force of attraction between a cation and anion, it is called electrovalent और ionic bond. Exactly जो हमने पढ़ा। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, और डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड इसको लर्न भी कर लो। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? The chemical compounds formed as a result of the transfer of electrons from one atom of an element to one atom of another element are called ionic or electrovalent compounds. ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? The number of electrons that an atom of an element loses or gains to form an electrovalent bond is called its electrovalency. Number of elements, number of electrons that an atom of an element loses or gains to form an electrovalent bond is called its electrovalency. सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? 1। क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? 1। 1+ या 1- भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम में, एक एलिमेंट एक when element of one atom
loses its electron to element of another atom of another element, उल्टा उल्टा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, सो इस टॉपिक पे मैं यहाँ पे ये लेक्चर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, why ionic compounds are stable, structure of some electrovalent compound, जो आज हमने देखा डिटेल में, मतलब नेक्स्ट क्लास फटाफट खत्म होने वाला है। देखो अब भी हमने बनाया ये स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम लोग आगे काफ़ी दूसरे स्ट्रक्चर करने वाले हैं। फिर रीडॉक्स प्रोसेस इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर देंगे और इंडेक्स क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट आई थिंक लेक्चर मैं कल ही बना दूंगा तुम्हारे लिए। आज हमने ये इंट्रोडक्शन किया केमिकल बॉन्ड का और एग्जाम्पल्स के साथ इसको पहले टाइप का जो बॉन्ड है वो समझा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।